today we are going to revise the portion in regard to the writs. As you people know that the writ is the portion of the Constitution under Article 32 and 226 of the Constitution. The writ is the portion of the Constitution dealt under Article 32 and 226 of the Constitution. As you very well know that under Article 32, the writs are only filed for the enforcement of fundamental right, whereas under Article 226, it is not only filed for the enforcement of fundamental right. I am sharing on your screens this. The Supreme Court and the High Courts have the power to issue in the nature of habeas corpus, quo warranto, mandamus, certiorari, and prohibition, etc. under Article 32 and 226 respectively. Power to issue writs in the primary, a provision make available the writs have been borrowed in India from England. You must know that the writs are borrowed in India from England. Power to issue writs is primarily a provision made to make available the right to a constitutional remedies to every citizen. The right to the constitutional remedies, as we know, is a guarantor of all other fundamental rights in India. The importance of Article 32, I told you, Dr. As I have given you the PPT of Article 32 and 226. If it has not been given, I'll give it to you. Article 32 और 226 की PPT मैं शायद पहले दे चुका हूँ ग्रुप में. अगर नहीं दी है तो मैं आज फिर से अवेलेबल करा दूंगा. Now coming on to the writs, हमें मालूम है कि there are 5 kinds of writ. There are 5 kinds of writ. The one is habeas corpus, other quo warranto, mandamus, certiorari, and prohibition. In which quo warranto is not related to the fundamental rights. It is progressive writ and it is not a remedial writ. इसमें कोई remedy नहीं मिलती है. इसमें जो चीज है वो सही होती है बस. बाकी writ remedial है. Certiorari और prohibition एक judicial writ है. सर्चरी और प्रोहिबिशन जो है वो जुडिशियल रिट है. यानी इसमें जो जुडिशरी की एरर होता है जुरिस्डिक्शन को लेके. सर्चरी में हमने बताया था कि इसको अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. सर्चरी और प्रोहिबिशन में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मूविंग टुवर्ड्स हेबियस कॉर्पस. इसका मतलब होता है यू मस्ट हैव द बॉडी एंड अ रिट ऑफ सिक्योरिंग द लिबर्टी वाज कॉल्ड हेबियस कॉर्पस. By this writ, court directs the person or authority who has detained another person to bring the body of the prisoner before the court as to enable the court to decide the validity, jurisdiction or justification for such detention. जिसको बंद कर रखा है, क्यों बंद कर रखा है, ये बताना होगा, जस्टिफाई करना होगा और कोर्ट के सामने उसको पेश करना होगा. इसमें एक हेबियस कॉर्पस से रिलेटेड है कि अंडर आर्टिकल 22 a person arrested required to be produced before the magistrate within 24 hours of his arrest, and failure to do so would entitle the arrested person to be released. आर्टिकल 22 में ये दिया हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने जिस आदमी को आपने अरेस्ट किया है उसको आप जस्ट अ मिनट बेटा. So, student, we were discussing the writ of habeas corpus. In which I told you that there is an important article, Article 22 of the Indian Constitution, which says if a person has been arrested
It should be present before the produced before the magistrate within 24 hours. If he is not being produced, he will be released. इस रिट का सोल मकसद ये है, सोल पर्पज ये है कि जिस आदमी को भी अरेस्ट किया जाए वो लॉफुल अरेस्ट किया जाए और कोर्ट को मालूम होना चाहिए कि उसका डिटेंशन लॉफुल है या नहीं है। ठीक है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट केस है वो गोपालन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द अर्लीस्ट डेट विद द रेफरेंस टू विच लीगैलिटी, कब से डिटेंशन काउंट होगा, जिस दिन से आपने अरेस्ट किया है उस दिन से होगा। इसमें दो तीन चीजें जो रिट के बारे में जानने की हैं वो ये है कि हु में फाइल, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कोई भी फाइल कर सकता है, वो आदमी खुद भी कर सकता है। इसके लिए जो हम ने जो पहले इससे पहले लेक्चर हेबियस कॉर्पस का डील किया था उसमें एक आध केस भी हमने डील किया था, तो उसको जब पीपीटी हम आपको देंगे तो उसमें बता देंगे कि हेबियस कॉर्पस हु में फाइल, it may be filed by the person aggrieved, it may be filed by the person who is relative of that aggrieved person, it may be filed by any person. हेबियस कॉर्पस की रिट कोई भी फाइल कर सकता है, भले ही कोई भी कैद है लेकिन कोई भी फाइल कर सकता है। और दूसरी चीज किसके अगेंस्ट फाइल होगी, उसके अगेंस्ट जिसने उस आदमी को अरेस्ट कर रखा है। अब तक मेरे ख्याल से समझ आना। Writ of quo warranto we have discussed that it's mean by what authority and a person holding a illegal office has to remove his office. It is not a remedial writ in terms के किसी को कोई relief sought करना हो, कोई relief मिले। ठीक है। Moving towards mandamus is a command issued by a court or authority directing to perform public duty imposed on it by law. For example, when a body omits to decide a matter which is bound to decide, it can be commanded to decide the same. यहाँ पे मेंडमस में ये होता है कि ये एक तरीके का कोर्ट का ऑर्डर होता है किसी भी अथॉरिटी को कि जो उसका काम है वो करे और जो उसका काम नहीं है वो ना करे। इसको समझ लीजिए कि ये दोनों ही नेचर की रिट है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर किसी अथॉरिटी का कोई काम है करना, वो काम नहीं कर रही है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी आप ये काम करिए, और किसी को कोई काम नहीं करना है और वो काम कर रहा है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी आप ये काम मत कीजिए। ठीक है। ये एक तरीके से किसके अगेंस्ट फाइल होती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट, लेजिस्लेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल, किसी के अगेंस्ट भी ये रिट फाइल हो सकती है मेंडमस की। इसका मेन पर्पस होता है कि जो अथॉरिटीज पब्लिक जिनके ऊपर जो अथॉरिटीज के ऊपर ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, अपनी ड्यूटीज से जिसे कहें अपनी ड्यूटीज को ऐसा ना हो कि न करें। ठीक है। अब ये सर्चरी और प्रोहिबिशन जैसे कि हमने बताया कि ये दोनों ही रिट्स हैं जुडिशियल रिट, कि जब भी कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेस करता है, एसेस कर देता है, ज्यादा अपना ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा काम करता है या जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे कम में काम करता है, तब ये दोनों रिट लाई करती हैं। लेकिन फर्क दोनों में ये है कि सर्चरी में फाइनल ऑर्डर आ गया होता है, प्रोहिबिशन में अभी मैटर पेंडिंग होता है। दोनों में फर्क समझ लीजिए कि सर्चरी में फाइनल ऑर्डर उस कोर्ट का आ गया है जिसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। अब जो है सुपीरियर कोर्ट उसका रिकॉर्ड मंगवाती है, कहती है कि तुमने ये मैटर कैसे एंटरटेन कर लिया, तुम्हारा तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। सेम इन अ मैनर प्रोहिबिशन में अभी कोर्ट में केस फाइल हुआ है और उस कोर्ट में फाइल कर दिया गया है कि जिसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो ये एक तरीके का स्टे ऑर्डर होता है। ये पांचों रिट आपने देखी और समझी। इसके रिगार्डिंग जो पीपीटी है आई लेट यू नो, आई एम आस्किंग वन बाय वन कि वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। व्हेन एनी administrative authority, legislative authority, or any executive authority did not perform his duty, then the court orders that particular authority to perform his duty. ये कोर्ट का एक ऑर्डर होता है। मान लीजिए कि कोई राशन कार्ड बनवाना है मुझे, मेरा राशन कार्ड बनाने से जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है वो मना कर देता है कि नहीं आपका नहीं बनेगा, मतलब विदाउट अ ड्यू रीजन, वो कोई रीजन उसका नहीं बताता है, तो मैं कोर्ट के पास मेंडमस की रिट के लिए जा सकता हूं कि ये इनकी ड्यूटी है और ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि शहर में सफाई रखना म्युनिसिपैलिटी का काम है, म्युनिसिपल ऑफिसर्स अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं, आई कैन मूव टू द कोर्ट फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के
वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें और वो सफाई का ध्यान रखें। तो दिस इज द रिट ऑफ मैंडेमस। आई थिंक मंतशा इट हैज बीन क्लियर टू यू। सर्चरी और प्रोहिबिशन एक सी, सर्चरी और प्रोहिबिशन एक सी ही रिट है, बस फर्क ये है कि प्रोहिबिशन एक तरीके से स्टे ऑर्डर है, अभी मैटर चल रहा है उस कोर्ट में जिसमें जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, वेयर एज सर्चरी में मैटर फाइनलाइज हो चुका है, इट हैज बीन कंप्लीटली डन, ऑर्डर आ चुका है, तो उसमें वहां पे स्टे ऑर्डर होता है, यहाँ पे उसका रिकॉर्ड कॉल किया जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्रॉम मंडे वी आर स्टार्टिंग द रिवीजन